مطلب گل دا انداز اس طرح کیتا تسی جس طرح کہ سرکاری مسلمانوں نو خوش کر رہے ہو بس. اور اچھا چلیں میں اب آپ کی بات کو نا ریپلائی کر دوں. چلیں بات آپ کی درست ہے لیکن شاید آپ نے سنا نہیں. میرے ساتھ تقریباً 4 احباب یا 5 احباب یہ معاملہ کر چکے ہیں کیونکہ میں عمر باب صاحبہ کی براڈ پہ ایک دن میری بحث ہوگی ان کے ساتھ. میں ذرا تلخی میں آ گیا, واقعی آ گیا, اور ان کے ساتھ میری بحث ہوگی. بڑی بدتمیزی ایک چل رہی تھی. تو جماعت احمدیہ کے لوگوں کی میں نے طرفداری کی وہاں پہ, عقائد کی بنیاد پر نہیں, ویسے وہ کوئی سیاسی گفتگو ہو رہی تھی. 73 74 کا ایک کیس چل رہا تھا, بات چیت چل رہی تھی وہاں پہ. تو یہ میرے ساتھ 3-4 لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. ایک آدھ کی بات ہوتی تو میں کبھی بھی نہ کرتا. میں فالتو بات نہیں کرتا, کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا. یہ آپ کے احمدی بھی بولیں گے, جواد صاحب بولیں گے, شیخ عادی بولیں گے, میاں جی بولیں گے, ایک اسلامک یونیورسٹی نام سے آئیڈیا تھے, آپ کلیم اللہ کو پوچھ لیجئے, ان سے بھی میری پرسنلی بات چیت ہوئی ہے. میں فالتو بات کرتا ہی نہیں کسی کے ساتھ. ہاں تو جعفری صاحب سرسری ایک بات کو آپ اس طرح مطلب بتا رہے ہیں کہ جیسے ان کا احمدیوں کا کوئی ایسا اصول ہے, آپ اس انداز میں بات کر رہے ہیں. باقی جو ٹک ٹاک کی باتیں ہیں, میری بات سنیں, ہمارے حلقہ میں کوئی 300 احمدی ہیں. میرا خیال ہے میرے علاوہ کوئی بھی ٹک ٹاک پہ نہیں آتا, لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو چند لوگ ہیں احمدی جو آتے ہیں. میں آپ کو ایک قدرتی عمل بتاتا ہوں جو انسان کا فطری ہوتا ہے, یہ کسی قوم کا ہوتا ہے. یعنی شیعہ حضرات ہے نا, ہو سکتا ہے شیعوں کی یہ کوشش ہو کہ ہمارا نظریہ غالب آئے, پوری دنیا شیعہ ہو جائے. اوپر کوئی سنی حضرات بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی کوشش ہو کہ یار ساری دنیا میں سنی تھاٹ آف سکول جو ہے اس کو رائج ہونا چاہیے, غلبہ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آؤٹ آف اسلام چلے جائیں, اس سے جماعت احمدیہ بھی یہ سوچتی ہو کہ ہمارا غلبہ ہونا چاہیے. اسی طرح گاڑے لگا کے بیٹھے ہو نا, تو یہ نیچرل چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی فقہ کا, کوئی بھی مسلک مذہب کا جو پیروکار ہوتا ہے نا, تو اس کی نیچرل یہ طبیعت میں ہوتا ہے کہ ہمارا غلبہ ہونا چاہیے. تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کو میں جواباً کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم ایسا کرتے نہیں. ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. مسیح بھی کرتے ہیں, جوش بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں. پھر آگے جو ان میں ڈفرینٹ مسلک ہوتے ہیں تو ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے. کوئی فقہ حنفی کا بیٹھا ہو تو اس کو ہو سکتا ہے اس کی کوشش ہو کہ نہیں یار ہر بندہ نماز بھی ہمارے طور طریقے پہ پڑھے, روزہ بھی ہمارے طور طریقے سے رکھے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر جماعت احمدیہ کے لوگ اس کاوش میں ہیں کہ ہمارا نظریہ رائج ہو جائے, یہ دنیا قادیانی ہو جائے, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. نہیں تو کاوش اپنی جگہ درست ہے. آپ کاوش کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ اصول ہے کوئی, یہ بات غلط ہے نا. اگر میاں صاحب نے آپ کو کہا ہے, سوری اگر آپ نے میاں صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا تو پھر آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہاں اس جناب جو عورت ہے تو اس کو ٹک ٹاک پہ لے ہیں تو سب کے سامنے پھر ڈسکشن ہو جاتی ہے. تو یہ بات دوسری ٹک ٹاک پہ جا کے کرنی اور دوسری ٹک ٹاک پہ جا کے اس انداز میں بات کرنی کہ جس طرح احمدی مجھے پریشر میں کہہ رہے ہیں, فورس کر رہے ہیں کہ کر لو بات, یہ انداز آپ کا یہ غلط ہے. مطلب دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, جو احمدیوں کے مخالف ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انداز کا اس طرح کا انداز اپنانا, یہ بات غلط ہے. چلے اب میرے وہ عقیدے میں میرے بردر ہیں, اور میں اگر ایسی بات کوئی جسارت کی, آپ کو ہو سکتا ہے وہ بات ٹھیک طرح سمجھ نہیں آئی. دلیل بھی میں نے دے دی ہے کہ جماعت احمدیہ کا بھی ہو سکتا موقف یہی ہے کہ ہم غالب آ جائیں. غالب کا تو بالکل ایک علیحدہ بات ہے, غالب کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. بات تو ہو رہی ہے انداز بیاں کی. ریل صاحب میں موقع دے, میں بتاتا ہوں کہ ان کا یہ انداز بیاں کیوں ہے اور اس میں کیا غلطی ہے. اجازت دیں. بات یہ ہے کہ یہاں پر مسلمان آپ کے پیچھے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں. ہم آپ کو آپ کی غلطی بتاتے ہیں, آپ ہمیں ہماری غلطی بتا دیں. لیکن آپ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے آپ کی کتابیں الف سے لے کر یا تک ازبر ہیں. جن کو آپ ان لوگوں کے پیچھے جا کے ان کو پرائیویٹ میسج کرتے ہیں جن کو آپ کے لٹریچر کا اور آپ کی کتب کا مطالعہ نہیں. یہ خرابی ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے تبلیغ کریں اور یہ کوشش کریں کہ بھئی آپ کا مذہب, آپ کا جو بھی عقیدہ ہے یہ دنیا میں پریویل ہو, تو اس میں کوئی برائی نہیں. ہر بندہ چاہتا ہے, جس طرح جعفری صاحب نے فرمایا, آپ اس کے لیے کوشش کریں لیکن دیانتداری سے کریں. وہ کیا ہے دیانتداری کا طریقہ؟ یہ ہے میں اور آپ کراس ٹاک کریں, ڈیبیٹ کریں. سننے والے جعفری صاحب, حیدر بھائی, جو زیادہ نہیں جانتے آپ کے, وہ ہماری گفتگو سے مستفید ہو کر خود فیصلہ کریں, نہ کہ آپ کسی بندے کو یا میں کسی بندے کو جا کے پرائیویٹ میں ٹچ کر کے اس کو ٹریپ کریں. یہ غلطی ہے. جی
हाँ तो आमिर साहब वो गलत बात है ना कि प्राइवेट किसी को कहा, तो वो गलत बात है। और मैं तो ये बात कह रहा हूँ आमिर साहब, अभी जिस जो आपने बात की है, क्या दुनिया का कोई बंदा इस बात पे मुत्फिक हो सकता है? क्या फरमा रहे हैं कि अहमदी उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ये कुतुब नहीं पढ़ी हुई? खुदा के बंदो, 300 लोग वहाँ पे बैठे होते हैं अहमदी बराडों पे, और आपके आलम वहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, हत्ता के मुनाजरे होते हैं। जो आप लोगों के मुनाजरे होते हैं, क्या वो ये नहीं कि किताबों से लाबलद होते हैं? उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होती? अभी जो मुनाजरे हुए, क्या आपके जो उलमा वहाँ पे तशरीफ़ फरमाते वो किताबों के बगैर बैठे हुए थे वहाँ पे? तो ये कोई ऐसी बात करें जो जिसको कोई समझ भी आए। राहिल भाई, आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आप मुझे अगर कोई मुझसे मेरी नीयत पूछे तो हो सकता है मेरा ये नजरिया हो कि ये नीचे आरवी ब्रदर बैठे हैं या हैदर भाई बैठे हैं, बिलाल साहब बैठे हैं या दीगर अहबाब सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरी कोशिश हो कि यार लोग मेरे जाविये से दीन के मुतालिक सोचना शुरू करें। वो जाफरी हदीस साहब, मेरी आप बिल्कुल बात नहीं समझे दोबारा, या आपका अपने आप को, अब मैंने कहा है कि अंदाज गलत है आपका ये कहना कि ये अहमदियों की अहमदी ऐसे करते हैं। मतलब अहमदी ये आप कह रहे हैं कि एक औरत अहमदी हुई है और वो आपसे कांटेक्ट उसका करवा रहे हैं, ये करते हैं। देखिए, अब अगर वो कोई भी एक इनफरादी बात है, किसी ने कह दी आपको चलिए ठीक है, डिस्कशन के अंदर। ठीक है जी, आपसे मैं सहमत कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, शुक्रिया सर, लेकिन अंदाज अपना रखना ऐसा चाहिए जो मतलब इज्जत वाला हो। इज्जत तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जमात अहमदिया के लोग इसीलिए मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी करता हूँ। नहीं जाफरी साहब, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर नहीं हुई तो फिर आप जी कीजिए बात। नहीं, देखें, ये आपने जाफरी भाई, आपने भी और बाकी जो नीचे मुसलमान बैठे हैं, ये आपकी बात अपनी जगह, लेकिन एक पॉइंट रहील साहब ने यहाँ पे छोड़ा जो कि अक्सर हम रात बोलते हैं और मुझे बड़ी हैरानगी होती है ये सुन के। वो क्या है ये जी, मैं तो टिकटॉक के ऊपर, मेरे मोहल्ले में तो 2 करोड़ अहमदी रहती है, मैं तो अकेला टिकटॉक पे आता हूँ, बाकी तो किसी को पता ही नहीं टिकटॉक क्या चीज है। हालांकि आज के दौर में तबलीग के हवाले से जितना सोशल मीडिया असरअंदाज होता है उतना दूसरी चीजें नहीं होती। ये मैंने देखा हुआ है। कोई भी मसले को मतलब हम मुसलमानों के अंदर भी आप देख लें, दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी देख लें, जो सोशल मीडिया उसको एज आ पावर के तौर पे कि किसी अपनी शात की अपने स्कूल ऑफ थॉट या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए, फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल ग्रुप्स हो या रिलीजन ग्रुप्स हो, सेक्ट्स हो, इसमें हर जगह पे ऐसे होता है। ये जो बात है ना कि जी एक अहमदी होता है जी हमारे, तो हाँ पूरे 2 अरब अहमदियों में सिर्फ 10, 12 या 100, 200 अहमदी यहाँ पे बैठे होते हैं। ये इतना बड़ा झूठ कहानी है ना, मैंने इससे बड़ी नहीं सुनी। जब ये किसी बात में इनको लगता है कि ये हमारा वीक पॉइंट है या हमारे बंदे ने ये ऐसी बात कर दी है कि जो कि यहाँ पे पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी, इनके मुंह से यही निकलता है। नंबर 1 निकलता है ये जो उसकी जाती बात है। नंबर 2, या ये टिकटॉक पे तो 200 अहमदी होगा, 100 अहमदी होगा, मेरे मोहल्ले में 2 करोड़ अहमदी रहती है, मैं तो अकेला आता हूँ यहाँ पे। या जब मुसलमानों की बात आती है, दुनिया के किसी कोने खुदरे में, दुनिया में 2 अरब मुसलमान है, दुनिया के किसी कोने खुदरे में कोई ऐसा शख्स जिसने कोई गलत काम कर दिया हो, ये पूरी उम्मत का नाम ले लेकर दिन रात पीटते हैं अपने बराडों के ऊपर। लेकिन जब कोई अहमदी बात कर दे तो तब ये जी एक अहमदी उसकी जाती बात है, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, और मेरे मोहल्ले में 2 करोड़ अहमदी में से अकेला मैं आता हूँ। ये कितनी 2 नंबरी है? राहिल साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो आपने बात की है, आपके अंग में तौसब की बू आ रही यहाँ तक ना। अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए, मैंने कभी ये लफ्ज़ कहे हैं 2 करोड़ 2 अरब, 2 करोड़ 2 अरब, 2 करोड़ 2 अरब, 2 करोड़, कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ तुमने अदा किए हैं अपना जो भी आपका नाम है बिलाल साहिब। और यही बात तअस्सुब की इतनी बड़ी बोरी है कि वो बोरी ऐसी बंद हो चुकी है, आपने मानना नहीं है को भाई मैंने 2 करोड़ की बात ही नहीं की या 2 अरब की बात ही नहीं की। और ये हकीकत है कि सब लोग ये टिकटॉक वगैरह सब लोग पसंद नहीं करते, ये आपका अपना फैसला है। मैं जो आपने अपने नज़रिया पेश किया ना, इसी तरह मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं इधर, कई दोस्त हैं, मैं जानता हूँ कि वो टिकटॉक पर आते ही नहीं कभी। मैं उनको बताता हूँ कि यार टिकटॉक पे आज ये बात हुई थी, तो वो कहते हैं अच्छा मुझे तो नहीं पता।
या मैं तो टिकटॉक पे नहीं जाता। ये ऐसे कई अब जो अहमदी लोग हैं वहां पे कितने लोग हैं बैठे होते हैं, उनको रोजाना देखे तकरीबन वही होते हैं जो भी आता है टिकटॉक, जिन्होंने ब्राड वगैरह लगाई। कितने लोग होंगे? 10 होंगे, 12 होंगे, 13 होंगे, 14 होंगे, क्या हजारों में है? तो इससे साबित हुआ कि बहुत कम लोग देखते हैं, लोग अपने बिजनेसों में कारोबारों में फंसे हुए होते हुए, और ये भी ख्वाहिश होती है उनकी कि ठीक है हमारा जो मजहब है वो ठीक ही फैले। ये भी बात सही है आपकी, लेकिन ये कहना कि मैंने कह दिया जी एक बंदा है तो 2 करोड़ है, आप जैसे मैंने कहा था कि 300 बंदे हैं तो आपको 300 का लफ्ज दोहराना चाहिए था। 300 को आपने 2 अरब में बदल दिया या 2 करोड़ में बदल दिया, तो इसका मतलब है तअस्सुब की बोरी तुम्हारे सर के ऊपर है। बात ये है। मैं रहील साहब एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं कलमा पढ़ के भी इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि कभी मैंने जमात अहमदिया के अकाबरीन या जमात अहमदिया के लोगों के मुताल्लिक़ या उनमें बैठ के कोई ऐसी गुस्ताही या वाहियाती की हो जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई हो। नेचुरली रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी, क्योंकि ये मेरे दीन ने मुझे ये इस चीज़ के ऊपर इसरार किया है कि तुमने रिस्पेक्ट करनी है। तो मैं समझता हूँ अगर मैं दुरुस्त हूँ तो मुझे आपको मुतनब्बे करना है कि आइए सुनिए मेरी बात, और अगर वो दुरुस्त है तो मान लीजिए, अगर आप दुरुस्त हैं तो हमें मुतनब्बे कर दीजिए, हो सकता है हम आपकी बात मान। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तासुब नहीं है। जिस तरह मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ की है कि हर फिरके की या हर मसलक की, हर मज़हब की ये काविश है कि उसका थॉट ऑफ स्कूल जो है वो गालिब आ जाए। मुसलमानों में नहीं हो रहा, तो इसलिए इस बात से कोई गुस्सा ना करें आप। इसको कोई एजेंडे के तहत या कोई एक जमात को मैंने कोई नीचा दिखाने के लिए या उनकी बदनिश्ती को ज़ाहिर करने के लिए ये बात नहीं की मैंने। ठीक है, आपने वजाहत कर दी, शुक्रिया इसका, लेकिन मैंने जो समझा था वो मैंने वजाहत अपनी तरफ से कर दी। अगर आपने बुरा बनाया तो मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन मैं तो ये अंदाज बयान आपके बारे में नहीं कह रहा जाफरी साहब। ये जो बिलाल साहब है वो फरमा रहे थे कि एक बंदा उसके मुकाबले में, मैंने 300 बंदा कहा, मैंने कहा मेरे हल्के में तकरीबन 300 अहमदी रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, और वहाँ पे मैंने अक्सर लोगों से पूछा है टिकटॉक की, मैं एक्स्ट्रा बात करता हूँ यार टिकटॉक पे ऐसे बहस हो रही थी, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमने नहीं देखी, या मैंने खुद उनको देखा, कभी टिकटॉक पे वो लोग नहीं आते। ये चंद लोग होंगे, मतलब 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50, मैं चलो कह देता हूँ 100 होंगे। आप भी रोजाना जाफरी साहब देखते हैं, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं रोजाना वही ब्रांड लगाते हैं, लाखों वो नहीं सुनते। राहिल साहब जाफरी साहब तो चले गए हैं, तो मैंने बात ही नहीं की, ये मेरा सवाल का जवाब ही नहीं है। और भाई 300 को 300, मैंने तो 300 की बात की थी, आपने 2 करोड़ की बात कर दी। इसी से मतलब निकलता है तस्सुब, आपका जमाती दोहराने थे जो मैंने कहे हैं। आपका जमाती मौक़िफ़ टिकटॉक पे बताया जाता है ना प्रैक्टिकली, और तो कई बार ना आपको समझ आता है ना बताया जाता है। लेकिन मेरा ये सवाल ही नहीं था, मेरा ये सवाल था कि किसी अहमदी ने कोई बात कर दी हो तो वो तो उसका जाती मौक़िफ़ हो गया, लेकिन मुसलमान जो 2 अरब दुनिया में मुसलमान है, तकरीबन 57 मुल्क है, किसी दुनिया के कोने खुदरे में कोई मुसलमान को काम कर दे, आप दिन रात बराडे लगा के तो आप उसके ऊपर पीटते हैं कि मुसलमान उम्मत का ये हाल हो गया, फलां हो गया, तब ये 2 नंबरी क्यों करते हैं? ये तो बिलाल साहब हम जब बात करते हैं ना तो आप ही के दानश्वरों की बात को दोहराते हैं, ना कि हम अपनी करते हैं। दोबारा सुन लें, हम जो हम भी तो आपके दानश्वरों की बात कर रहे हैं, प्लीज आप सुन लें। हम वही बात करते हैं जो आपके 200 टीवी चैनल बता रहे होते हैं कि ये हो रहा है, हम उसको रिमाइंड कर देते हैं बस। इसमें क्या कसूर है हमारा? ये अब आपने एक और झूठ बोल दिया भाई। हमारे अगर कोई बात बुरी होती है तो हमारे, आप खुद बता रहे कि हमारे अपने लोग उसको कंडेम कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको उठाकर डाल देते हैं पूरी उम्मत मुसलमान पर। लेकिन आपके यहाँ टिकटॉक के ऊपर 3-4 हस्तियां हैं, मलिक साहब है, नासिर अहमद साहब है, ताहिर अमजद साहब है, मीर सलीम है, शाहद रब्बी है, अंसर रजा है। अच्छा, जमात के ये जो मैंने इनको बात की ना, ये कोई छोटे मोटे लोग भी नहीं है, इनको पूरी जमात के लोग जानते हैं, और ये ऐसे भी नहीं है कि इनको टिकटॉक के बाहर को नहीं जानता, बड़े बड़े नाम लेते हैं ये, तो फलां हमारा रिश्तेदार है, खुद भी इनमें अक्सर मुरब्बी भी हैं, शाह साहब भी मुरब्बी रह चुके हैं, इसके अलावा भी दूसरे लोग हैं। यार ये जब कोई बात करती है तो आप कहते हैं उनका जाती मसला है, और जब हमारा कोई बंदा बात करता, आपके 200 चैनल वाले खैर आपने बोला तो झूठ ही है, लेकिन आपने कम से कम ये तो बता दिया कि हमारे अपने लोग उसको प्रणाम कर रहे होते हैं, लेकिन आप तो जस्टिफिकेशन देते हैं, आप तो हर बात की जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आप ये मानने को तैयार नहीं होते कि अहमदियों का ये मौक़िफ़ है।
लेकिन मुसलमान का कोई बंदा, मुसलमानों में से कोई बंदा कोई गलती कर दे तो आप पूरी उम्मत मुसलमान 200 करोड़ जो लोग हैं, 2 अरब जो मुसलमान हैं, आप उनके ऊपर डाल के चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। मैं इस 2 नंबरी की बात कर रहा हूँ कि इस 2 मिसाल नंबरी को, इस मुनाफत को आप छोड़ दे। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हमें भी मौका देना, फिर हमारा भी हक बनता है कि चाहे कोई बंदा भी बात करे, हम उसको जमाती अकीदे के मुताबिक पेश करेंगे, क्योंकि वहां पे अहमदी बैठे होते हैं और अहमदियों के दरमियान वो बात हो रही होती है। नहीं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के एक दानिशवर हैं बहुत बड़े, मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि ये जो पाकिस्तान में अहमदियों को कुर्बानी नहीं करने दी जा रही है, क्या है, ये क्या इस्लाम है? मतलब वो तनकीद कर रहे थे। अगर मैं ये बात दोहरा दूंगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा आपके नज़दीक? मिसाल के तौर पर नासिर अहमद साहब ने कहा कि जना करने का मतलब होता है चढ़ना, और मिर्जा साहब ने भी जना किया, तो इसको मैं दोहरा दूंगा तो कोई गुस्ताखी हो जाएगी। तो ये इस वक्त नहीं होगी। मजहबी बात नहीं हो रही, माशरती बात हो रही है। तो मैं भी तो मजहबी बात नहीं ये कर जो रहा, बात एक की है लफ्ज ना मैं नहीं आपने, बता रहा हूँ ना। ये जो बात की है ना, ये है मजहबी बात, मजहबी ये मुनाजरे कोई में आप मजहबी बात बात कर नहीं सकते है, हैं। एक इसका तो लफ्ज ये है, मुनाजरा नहीं हो एक रहा। लफ्ज है अभी जना, आपने उसका मतलब बताया जा रहा है, क्या मतलब है? माशरती बात हो रही है कि माशरे में क्या हो रहा है, उसकी बात हो रही है। नहीं अब तो देखो अगर ना, ये मुआशरती आपकी बुराई शिकस्त ले की लें दलील है तो कि निदल आप दायरे नसर से की बाहर निकल आए हैं ना। ये जिस निदल दायरे में नसर की बात हो ऑडियो, रही है, निदल नसर जिस की ऑडियो दायरे मेरे में पास बात हो रही महफूज है, है। उसी दायरे में बात करनी है। इस निदल नसर दायरे की में ऑडियो इस वक्त महफूज माशरती है, बात हो रही मुआशरती है। बुराई में देखा, उसको हम इसी रिपीट में कर इसी सकते में हैं रईस पता साहब। चलता है, इसी में पता चलता है आपकी शिकस्त कि आपने बात को किस तरह चेंज कर दिया। मतलब माशरती बात को मजहब में चेंज कर दिया। मैं तो जो हो रहा है दुनिया में इस वक्त माशरे में या कल्चर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल्टूर जिसको कहते हैं, वो बात हो रही है। ठीक है, आप अपनी मर्जी करते रहे, ठीक है, जिस तरह मर्जी करते रहे। मैंने कहा 300 बंदा को नहीं पता कि टिक टॉक पे बात हो रही है इस वक्त, जो हमारे मतलब बहुत कम लोगों को पता है। आपने कहा नहीं जी, ये जो क्या कह रहे हैं जी, एक बंदा नहीं है तो 2 करोड़ को नहीं पता, तो 2 अरब को नहीं पता। ये सारी तसब की बोरी होती है जो बंदा उठा के ले आता है, ना वो फिर उठा सकता है, तो ना उसको मुजीबुर फेंक रहमान सकता है। शामी की बात को भी 2 अरब मुसलमान तो नहीं ऑन करते, वो हाँ, तो मैंने 2 अरब की बात की है, मैंने 2 अरब की बात की है। यार मैं कह रहा हूँ मुआशरती बुराई में निदल नसर की ऑडियो जो है वो हम ये रिपीट कर देखा ना, सकते फिर हैं। मजोबल चला गया। इस वक्त मजहबी बात तो हो ही नहीं रही। कब मजहबी यही बात है तो किसी बच्ची के साथ? शिकस्त की दलील होती है। अगर तो भाई किसी यही बच्ची के, शिकस्त की दलील है कि इस नहीं वक्त साहब, जो माशरे में अगर किसी कल्चर औरत के साथ, किसी कल्चर की बच्ची के बात हो साथ रही है, ज्यादती हुई है, तो मैं अगर तो ज्यादती कहूँ पे कि बात करना अच्छा, ये मैं तो अगर मजहबी आपको बात नहीं कहूँ, है। मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान में आप ही की दानिशरों की रिपोर्ट है कि हर मिनट बाद ये बात हो रही है वहां पे, फिर तो ये मान मजहबी लोगे? बात होगी, माशरती बात होगी? तो फिर क्यों चेंज कर रहे हो मजहबी होगी कि माशरती बात को माशरती? मजहब में? तो ये हमें भी हाल मौका है देना, लोगों हमें का। माशरती वो बुराइयां जो आपके अंदर है उसको बयान जाफरी करें। साहब ने बात को समझा था और उसने सॉरी भी कर दी, लेकिन जाल है आपके जाफरी अंदर साहब से तसब तो की आपने बोरी बात नीचे उतरे। कंप्लीट कर ली ना, उनसे तो बात, तसब की बोरी, जब तक तसब की बोरी ऊपर से नीचे उतरेगी नहीं, आपका दिमाग काम ही नहीं कर तो सकता। तासुब सवाल की पैदा बोरी नहीं यही होता। है ना कि एक इंसान की बात को चले उठा के 2 ठीक है, अरब मुसलमानों जिस पे तरह डाल देना। जाफरी साहब ने सॉरी की, मैं भी उनसे सॉरी करके नीचे जाता हूँ। आप आपस में करते रहे। ओके, ना अल्लाह बस ठीक है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ही 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 ही। चलो, इंतहाई 2 नंबरी है, मुनाफिक है, और की है। अस्सलामुअलैकुम, मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। इस्लाम का जवाब ही दे दियो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मैं तमाम परेशान, अहमदियां नो ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ज़िया रसूल भाई ने सर की नाम सी ਉਹ मिर्जा साहब ने की आख्या सी, की अच्छा करो सदीक करी के दा के ना ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰਕਤ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੱਪ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ WhatsApp ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪ ਗਵਾਹ ਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਲ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੇ ਗਾਲਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਜਨਾਤ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਰਵਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਗਵਾਹ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਜਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਬਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਹਿਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਜਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸੁਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਜਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਦੇ ਬੈਤ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਤੇ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੈਤੇ ਹੋ ਗਈ 165। ਓਹ ਬੈਤ ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਏ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਤਬਲੀਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਹਰੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਉਖੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਗਰਮ ਹਵਾਲਾ ਪੜ ਦੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈਏ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। जाहिल मुखालिफ कहते हैं जोर अब आ इस गया मलक साहब तमाम गरम। तहरीर से मतलब मेरा ये है मलक साहब जब न्याणे मुखालिफ मेरे बच्चे पे इल्जाम लगाते हैं। मुंडे अपने जिथे दिखना ना वो थले सराहना रख दो ते फिर पड़े आ नहीं वो स्कूल गया था ही तो मैं पढ़ रहा। सट पेट ना लगे। ये बड़ा ही गर्म वाला है, बड़ा गर्म वाला है। पढ़ के ना तो यकीन करो नहाना पैंदा है। गर्मी जिसम दे अंदर लगती है। पहले मैं एसी लाना, फिर कूलर लाना, पखा चलाना, फिर एक गर्म वाले मैं पढ़ता हूँ। एक गर्म वाले ने भाई, बड़े गर्म वाले ने। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ। हाँ जी क्यों नहीं। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਹ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ खूब इबादत की और बेहतरीन मतलब वक्त गुजारिया। तो दूसरे दिन जनाब गड्डी लईए तो पूरा UAE जड़ा ना वो फिर के आए हैं तो नाल है टिकटॉक सुनते रहे हैं। तो बाज़ जगह तो असा वेख्या जनाब अरफात वाले दिन भी तो ईद वाले दिन भी वो जनाब गालां चलिया वो गालम गलोच चली है कि मेरे कन्ने तुम्हें निकलते रहे। मतलब यार हद हो गई है। तो मैं तो आना कि जी अमर नज़ीर भाई यकीन करो कि तुहाडा ना उत्थे तक हुण पहुँच गया है कि जिथे जिथे तुहानूं पहले लोग नहीं सन जानते। हर जानते तो पहले भी है सन, लेकिन हुण लजनात दा या मरज़इयां दा कोई एक छोटा जिहा जमदा बच्चा जिहड़ा ना वो भी नहीं हो सकता कि तुहाडा नां ना जानदा होवे। ऐसे बेवकूफ लोग ने कि इन्हां ने कट तुहानूं गालां ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਹੁਣ ਆਪ ਆਉਣਗੇ
ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਏ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। दुश्मन अमन नज़ीर सब हलीफा मसरूर का दुश्मन अमन नज़ीर हर सही के घर बच्चे बच्चे को बोले अमन नज़ीर ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। इधर मजीद हो गया ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੂਬੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਗਰ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਬਹਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਲਾਹਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਛਣਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਏ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੰਜ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਏ। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, किरदार का गाजी बन न सका, गुफ्तार का गाजी बन तो गया। हाँ जी, उन्होंने बारे की उन्होंने नहीं ख्याल आंदा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਿਲ ਬਟਾ ਨਿਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੈਸੀ ਗੰਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਮੌਤ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, तो फिर मेरी कारकर्दगी तो फिर मेरी तो गल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरा नाम शुरू अपनी तारीफें खुद लो, आमिर नामा शुरू, पता नहीं की कह रहे हैं, पहले तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਦ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਦ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣ।
ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਓਏ ਓਏ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ ਓਏ। ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਇਸਲਾਮੀ ਇਖਲਾਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ 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 ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਤੀਫਾ ਓਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਲਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਏਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਰਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। 600 ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਦ ਅਸਕਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਆਖਣ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ- ਨੇ। ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ। ਕੁਝ
جے
असली है ना घर में या असली आपकी माँ है? क्या आप ये पसंद करते हैं कि वो टिकटॉक पर आकर यही काम करें जो बज़ाहिर आपकी नज़र में दावत और तबलीग का काम है? अपनी माँ को बुलाओ, अपनी घर बैठी हुई बीवी को लाओ, अपनी बहन को लाओ, अपनी बेटी को लाओ। अगर उनको लाते आपने कहा था वो ठुकवाती है, उसने ठुकवा लिया, ए गल्ला हो रही ने ते बैठी उथों निकली है, उथों निकलिया है शमा खुसरा ते एक और बराड़ ते चला गया हुसैनी साहब दी। अच्छा उत्थे के गल्ला हो रही ने, लोंडी से मुबाशरत, किस तरह मुबाशरत होंदी सी, ये गंदियां गल्लां हो रही ने। मतलब है तो इस्लाम दे विच ही, लेकिन थोड़ी जी शर्मो या वाली गल है। ये शमा खुसरा जनाब वाली उत्थे भी बैठा है। फिर मैं भी उत्थे चला गया, मैं आख्या तुसीं लोंडियां नूं छोड़ो, अजकल एक सवाल है बड़ा अहम, और वो सवाल भी मैं कर देता। वो बकर मीर भाई भी उत्थे मौजूद सन। मैं क्या ये दसो जी अजकल ये चाइना की AI गुड्डी आ गई है जी हर टाइम तुहाडे नाल हुंदी है, इहदे नाल सैक्स करना किस तरह, तां उन्होंने थोड़ी गैरत आई तो उन्हें खाल मारी। नहीं, जब इतने मर्द बैठे ने, मर्द तरह तरह की गल्लां करते हैं। अब इसने जो नजायज अपनी बहन की है, यही जो पीर साहब आपसे यही अपील की थी, पीर साहब आपसे यही अपील की थी कि आप इस तरह की नजायज दी है, उसका क्या करना है? पीर साहब आपके पास म्यूट का बटन है, आप म्यूट करें इस अकाउंट को जो गालियां लिख रहा है। आप यही तो आपसे अपील करने ऊपर आपको दिखाना तो था ना। नहीं, लेकिन आप इस रैटरिक से बाहर आए ना, आप वक्त आगे मूव ऑन करने का भी तो टाइम होता है। बड़ा ऐसा मुझे ये बताएं, जो पीर साहब को ये गालियां नीचे दे रहे, आमन नजीर भाई ने कभी मना किया है इसको, अब्दुल्ला को? अपना नाम, कितना प्यारा तुम्हारा नाम है यार, अपने नाम की लाज रख लो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू साहब आप बजाय मनफी मस्बत बात करने के आके मनफी बात करके लोगों को उकसा रहे हो और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हो, ये तो जी 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 अमर भाई। तोबा अस्तगफिरुल्लाह। चलाओ चलाओ बस, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ऐसे ऐसे बेगैरत लोग अल्लाह गवाह है टिकटॉक ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, ये तो प्लीज वॉल्यूम सॉरी आप ये तुम काम नहीं पप्पू मेरी बात सुनो, ये ये गुजर को आपने उतारना नहीं है। मुसलमान अगर आपस में लड़ ये गुजर कोई आईडी को ना उतारिए था, ये आमिर नजीर का बहनोई है। मैं तो कह रहा हूँ आमिर नजीर हमारा भाई है, पीर अस्कानी भी हमारे भाई हैं,
हम दोनों भाइयों का रिजन है। खुदा की कसम मैं तो चाहता हूँ, मैं तो आमिर नजीर को भी उस्ताद मानता हूँ, बेशक वो गालीबाज है, कोई शक नहीं। पीर अस्कानी को भी यार आप यहाँ पे पीर साहब इसे तुम किसको मानते हो? कोई पूछता है तुमसे कि किसको क्या मानते हो? सिस्टर एक सेकंड तुम खुद ही बताना शुरू कर देते, मैं फलाने को फलाना मानता हूँ, फलाने को जाओ पीर साहब आप इस पप्पू मलो को रिमूव करें, ये यहाँ पे आके शैतानियत कर रहा है, उकसा रहा है, लड़ाई कर रहा है, ऐसी बात। गालीबाज को या पीर अस्कानी को बेहतर किसको समझते हैं, गालीबाज को या पीर अस्कानी साहब को? जी अशफाक साहब, मैं तो बेहतर नहीं, बेहतरीन इन सब में पीर अस्कानी साहब को समझता हूँ, क्योंकि पीर भाई तुम क्या समझते हो? तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बड़ी अफसोस की बात है, आप भी बुजुर्ग हैं, लेकिन आपसे कोई बुजुर्गी वाली बात अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिली। आप भी दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं बड़ा अफसोस है। वैसे मैं मैंने कौन सी बात की है? अफजल भाई साहब एक सेकंड, बड़ा साहब जब दीवाना की प्लाट में मुसलमानों को गाली दी जा रही है, तो ये इस तकाबली जायजा क्या मकसद है इस बड़ा साहब आप वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं? एक गालीबाज नहीं है, तो उनमें से बेहतर कौन है? आप लोग देखिए, आप लोग मुझे गलत कह रहे थे, खुद बम्बास्टिक देखो नीचे लिख रहा है कि मोहतरम गलीज आमिर नजीर हमारा प्यारा कादियानी भाई है। तो इतना गंदा इंसान है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो मर्जियों को गालियां निकाल रहा होता है, इसकी बात का क्या लेना देना? प्यारा भाई बता रहा है ना। जी साहब, जहाँ तक मैं देखा है, पहले हमारे जब तक मुझे इतने बड़े, आप लोग पाकिस्तान के बहुत बड़े महान लोग हो, पता नहीं आप बोलते तो रहते हो, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, तुम पाकिस्तानियों ने मिलकर वो हरकतें की हैं कि दुनिया में किसी शैतान ने भी नहीं की हैं। जब सुनिया जी, सुनिया दे हजरत साहब दे कितना मुगल, लेकिन सुनिया है, लेकिन ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਵਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਕ 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 ਤੇ ਯਬ 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 ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ। लेकिन मैं दसिया कि एक बगैरत नहीं, एक बगैरत ते विच आवाज़ भी आमदी सी, मैं सुनी। उन्होंने हुण मैं लभना पे अगले दिहाड़े तो माफ़ी मांग के गया है। हुण मेरे सामने आवन दे, मैं चुप के इंशाल्लाह ना सीधा गटर च सुटा तो चल बगैरत नंबर 1। अब बड़ा चा अगे सुनो तक आप लोगों से मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मैं आमिर नजीर को कोसता रहूंगा, ये मेरा वादा। क्या चाहिए? भाई हम भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और आपके साथ हैं। कोसे लेकिन उसमें मलूज रखे बुनियादी अखलाक को, इस्लामी अक़दार को। आप आलिम दीन है, आपका कोसना जो है वो हमारी खुली जंग है भाई, खुली जंग है। अभी मैं इसके कैसे लगाऊं? ये उसका फालतू जो है ना, ये कह रहा था कि उसको फोन किसने किया था, उससे पूछो किसने लेकर मुझे मैसेज किया, तो सर अभी ने पूछो उससे। बगैरत इंसान। सिस्टर प्लीज आप गालियां दे दे, आप उम्र का आप हमारी बहन है जैसी भी है। भाईजान मेरी एक गल सुन ले, दमे दा मरीज है, इनू की मसला हो गया?
मुराई साहब, आप जब गाली बाजी के पास बैठते हैं, सिस्टर मेरी बहन देखिए, अहमद नज़ीर को गाली न दे, अहमद नज़ीर को गाली न दे, वो हमारा भाई है। उसमें टोकरी में न डालूं। चलो अहमद नज़ीर हमारा भाई है, जैसा भी है हमारा भाई है। चावड़ा साहब, जब आप गाली बाजों के पास बैठे होते हैं और गालियां दे रहे होते हैं, तो आपका भाई है या कादियानी का भाई है? वो पीर साहब हमारा भाई है, पीर साहब हमारा भाई है, साबित कैसे पीर साहब हमारा भाई है। मैं किन गालीबाजों के पास आपको साबित करो ऐसी बात? यार टिवाना नहीं, बड़ा साहब मैंने नहीं कहा आप दे रहे होते हैं। बड़ा साहब, जब उस दिन 4-5 दिन पहले की बात है, टिवाना की बरात पे कोई मुसलमान बख्शा नहीं गया, तो आप वहाँ पे बैठ के कौन सा वजीफा पढ़ रहे थे? लेकिन टवाना को मैं नहीं, टवाना की गाली बाजी के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ। मैं ऐसी बेशर्मी बेहयाई कोई भी करे, वो टवाना ही क्यों ना हो, मेरी तरफ से मजम्मत है उसकी, और उसके मुंह के ऊपर मजम्मत की है। या तो मैं नहीं, मेरी बात सुने पप्पू मलिक साहब, आप मुझे मिला रहे हैं ऐसे रवैये के साथ। भाई इसको मुंह ना लगाएं, ये बहुत बड़ी गलाजत है, बड़ी छीट है ये। अल्लाह माफ करे जो अपनी बहनों के साथ ये करता है, इसकी तो बहन कोई अपनी पास भी ना गुजरवाई। सिस्टर देखिए, तू चल जाके उसके बाद